Good morning students. Today we are doing some more practice for hybridization. हाइब्रिडाइजेशन में क्या है बेटा, सबसे पहले आपको जो भी एग्जाम्पल मिला है उस एग्जाम्पल के लिए आप टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर दो. ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन प्रेडिक्शन करोगे आप उसके लिए क्या हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए. फिर उसके बाद आपके पास हाइब्रिडाइजेशन पता होगी तो आप उसकी शेप पता कर सकते हो एंड यू हैव द आंसर. ज्योमेट्री आपके पास उसकी होगी. तो हमने वीपीटी और प्लस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर शेप पता करनी है. व्हाट इज फॉर्मूला फॉर प्रेडिक्शन ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन? दैट इज half of valence electron for the central atom plus monovalent atom attached to it. If there is the anionic charge, then add that charge, and if there is cationic charge, subtract that charge. इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई करके आप नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड आउट करोगे. जस्ट लाइक वेस्पर थ्योरी में आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स काउंट करने थे, सेम फॉर्मूला से आप यहाँ पर नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फाइंड आउट करोगे. और जैसे ही आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पता चल गए हैं, यू विल फाइंड द टाइप ऑफ hybridization. If your answer comes to be 2, then type of hybridization is sp, that has the shape linear. For example, we have PeCl2 हमने कल डिस्कस किया था. Now we have another example CO2. CO2 के लिए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने होंगे? CO2 में you will find out hybrid orbitals is equal to hybrid orbitals, that is half of सेंट्रल एटम है कार्बन, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4. ऑक्सीजन इज डाइवेलेंट एटम, सो यू विल ऐड 0. देयर इज नो चार्ज, कोई एनायनिक चार्ज नहीं है, कोई कैटायनिक चार्ज नहीं है. दैट मीन्स यू जस्ट हैव 4/2 means 2 hybrid orbitals you have. And when you have 2 hybrid orbital of carbon, that is s and p, means one s overlap with p giving rise to 2 sp hybrid orbital. And you know these hybrid orbitals have arrangement in this way, and that is the linear way. ठीक है, again CO2 molecule have linear shape. We will discuss the shape of CO2 in next case. When we have 3 hybrid orbital, then hybridization is sp2 and shape is triangular. For example, BF3 we have discussed. Now we have SO2. तो SO2 में आपने सेम सेंस में फाइंड आउट किया. SO2 में सल्फर सेंट्रल एटम है, तो सल्फर के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6. मैं यहीं पर ही राइट कर देती हूँ इसको 6. Again oxygen is divalent, so you will write the same sense and find your answer, that is 6/2 3. This time for SO2 you have 3 hybrid orbitals and the hybridization is sp2. That means you have triangular shape. The 3 sp2 hybrid orbital arrange themselves in this way. तो ये आपके पास क्या आ जाती है? ट्रायंगुलर शेप में अरेंजमेंट है इन ऑर्बिटल्स की, सल्फर ऑर्बिटल्स की यहाँ पर. दैट इज द ट्रायंगुलर शेप sp2. Now you have 4 hybrid orbital, just like you have for CH4. Then hybridization is sp3 5, then sp3d. PCl5 में देखो फॉस्फोरस है और 5 क्लोरीन है. You will find out phosphorus central atom is there and you will have half of 5 plus 5 plus 0 and 0. Then your answer comes out to be 5. With 5 hybrid orbital you have sp3d and the shape name is triangular bipyramidal. In the same way you will have 6 answer, then hybridization is sp3d2 and type shape is octahedral, just for SF6.
Let's find out the shape of these hybridization. Some of the example which we did earlier, we will not repeat this. I will take it down. तो ये हमने कल कर लिए थे प्रीवियस वीडियो में. आज हम इन्हें रिपीट नहीं करेंगे. अगर आपको इन्हें फिर से रिव्यू करना है तो आप प्रीवियस वीडियो को ही वॉच करेंगे. ओके, नाउ कम टू द एग्जांपल CO2. हाउ इट मेक्स. CO2 में अभी आपने प्रेडिक्शन किया कि उसमें जो शेप है वो sp हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग गई है, वो लीनियर है. देन हाउ इट goes. CO2, carbon, electronic state, ground electronic configuration for carbon is 2s2, 2p2. Okay, you will write it 2px1 and 2py1. Now this carbon has to make bond with two oxygen atoms. Then where are the orbital picture? Like this. Okay, that one. Carbon will shift its electron to the p subshell, but in spite of having 4 unpaired electron in its orbital, it undergo hybridization just for one s and one p. हाइब्रिडाइजेशन इसके पास sp ही होगी. कार्बन जो है वो sp हाइब्रिडाइजेशन जाएगा. आपके पास ऑक्सीजन अपनी कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ रहा है, दैट इज 2s2, 2p4. ऑक्सीजन हैज 4 electrons. It will make 2 bonds with carbon atom. Opposite electrons आप इसके दिखाओगे. One bond that is making here is sigma and other bond that is making here is pi. One bond with unhybridized and other bond with hybridized. जो hybridized के साथ वो bond formation कर रहा है ऑक्सीजन, that is sigma bond. और जो unhybridized के साथ bond formation हुआ है that is pi bond. ठीक है. In the same way, the second oxygen when comes near to carbon, that makes same bond formation. That means you have such type of electron here. है ऑक्सीजन के पास, आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स थे ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन में 2 बॉन्ड्स फॉर्मेशन करने हैं. वन बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल एंड अदर बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. तो जो हाइब्रिडाइज्ड के साथ बना है वो सिग्मा बॉन्ड और जो अनहाइब्रिडाइज्ड के साथ बना है वो पाई बॉन्ड. ये इसका डायग्राम जो है वो ऑर्बिटल पिक्चर है. और लोब्स की फॉर्म में अगर आप ऑर्बिटल्स दिखा रहे हो, यू विल फॉर्म लाइक दिस. These are the orbitals, hybrid sp orbitals of carbon that directs the oxygen orbitals. ठीक है. तो ये ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स यहाँ पर इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं. These are the sigma bond formation. हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल्स की, वो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए गया है. एंड दिस कार्बन स्टिल हैज 2 ऑर्बिटल्स व्हिच आर अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. कार्बन के पास 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं. इन अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइड वाइज ओवरलैपिंग कर रहे हैं. एक यहाँ फॉर्मेशन हो गई, एक यहाँ पर, दैट इज द पाई बॉन्ड. इन द सेम सेंस दिस ऑक्सीजन आल्सो हैज अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल दैट आल्सो मेक बॉन्ड फॉर्मेशन विद कार्बन पाई बॉन्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. ठीक है. यू विल शो दैट कि यहाँ पर sp hybrid orbital and p orbitals that makes sigma bond and p
hybrid orbital make p bonding for pi. So two bonds are there for these two and two bonds are formed between these two. There are total 4 bond formation among the 3 atoms. You see here, that is the sigma bond and another one is the pi bond. You can explain this. ओके तो CO2 में आपके पास जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुई है वो इस तरह से हुई है कि उसके पास लीनियर शेप आएगी. नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन. दैट इज द out of the three I am going to explain C2H4. okay, C2H4 में आपके पास कार्बन, अगर आप सेलेटिव को जानते हो, ये इथीन है और कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड बना है एंड ईच कार्बन कैरी 2 हाइड्रोजन एटम्स. ये इसकी स्ट्रक्चर है. लेट्स एक्सप्लेन इट्स हाइब्रिडाइजेशन अलोंग विद इट्स structure, orbital shape. Then you will find out carbon has attachment with 3 atoms. 3 एटम से अटैचमेंट है इसकी. सिंगल बॉन्ड जो शेयर कर रहा है 3 एटम से कर रहा है ये. तो हम यहाँ पर फॉर्मूले से निकाल लेते हैं. हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन कार्बन दैट इज 4 एंड नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम अटैच टू इट 2 दैट इज प्लस 0 माइनस 0 भी हो गया. दैट कम्स आउट टू बी 6/2 मीन्स 3. दिस कार्बन अंडरगो हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 and again this one has the same situation, that also has 3 hybrid orbital. Means to say with 3 hybrid orbital that undergo 4 sp2 hybridization. In case of ethene, each carbon will undergo sp2 hybridization. Okay? इस sp2 hybridization में बेटा आपके पास क्या है, कार्बन के ऑर्बिटल्स इस तरह से ट्रायंगुलर शेप में अरेंज हैं. sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, ट्रायंगुलर शेप बनेगी और दूसरा कार्बन है उसके भी ऑर्बिटल्स जो हैं वो इसी तरह से ट्रायंगुलर शेप में अपने आप को अरेंज करेंगे. ओके, दिस sp2 hybridized orbital of first carbon overlap with the sp2 hybridized orbital of other carbon to make the sigma bond. तो फर्स्ट बॉन्ड बन गया ये sp2 और sp2 के बीच में, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड. ओके, नाउ क्योंकि कार्बन के पास फोर्थ ऑर्बिटल भी है तो फोर्थ ऑर्बिटल इसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड है, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता. ठीक है, इसका भी जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है फोर्थ वन, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा. जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होगा उसे आप डॉट से दिखाओगे और सेकेंड थिंग वो अपने कंप्लीट लोब्स के साथ होगा, उसमें जस्ट पी कैरेक्टरिस्टिक ही होगा, दैट विल नॉट हाइब्रिडाइज्ड. sp2 वो नहीं होगा. ठीक है, तो क्या किया, ये कार्बन था, कार्बन के पास ऑर्बिटल्स थे 2s2 2p2 मीन्स ये आपके पास ऑर्बिटल्स थे इसके, इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो कर दिया बट हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ 1s और 2p को रखा. इनको रखा तो ये 3 ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइज्ड होंगे. द नेक्स्ट वन इज अनहाइब्रिडाइज्ड. ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा और साइडवाइज ओवरलैपिंग से बनेगा पाई बॉन्ड. ठीक है, कार्बन कार्बन में बनेगा पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग से. पी और पी के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है पाई. बाकी के जो ऑर्बिटल्स रह गए हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. ओके, पार्शियल ओवरलैपिंग करेंगे और सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ दिस कार्बन विल मेक बॉन्ड फॉर्मेशन विद द हाइड्रोजन एटम. ओके, ये है आपके पास दूसरा वाला कार्बन एटम जिसके पास सेम सिचुएशन है. ये लो, सेम सिचुएशन है इसके पास. तो क्या हुआ, इसने एक बॉन्ड फॉर्मेशन कर लिया इसके साथ, दैट इज द सिग्मा बॉन्ड.
दोनों हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ना, sp2 hybridized of first carbon get overlapped with the sp2 hybridized of other carbon, that makes the sigma bond. फर्स्ट सिग्मा बॉन्ड बन गया ये यहाँ पर. ओके, नेक्स्ट वन, आपके पास बाकी के जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए हैं उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी. जब इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है आपके पास, तो वो आपके पास फिर से सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन है. ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन आपके पास हुआ है, दैट इज बिटवीन S and sp2. Here two bonds comes with carbon and hydrogen and two bonds with this. Means as a whole you have total 1 and 2, 2, 4, 5 bonds, sigma bonds, and one pi bond is there between the unhybridized orbital. That is the last one orbital goes out to be unhybridized. और आपके पास एक skeleton structure आ गई है, वो इस तरह से है. आप इसको इस तरह से भी दिखा देते हो. There is the sigma bond, all you represent by dark lines, and the hybrid orbital you represent for the pi bond formation like this. ठीक है, ये है आपके पास shape for C2H6 and the bond angle is this one, that is according to triangular shape. 117 है वैसे तो ये, पर हम इसको राउंड अप करके 120 डिग्री राइट करते हैं. ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ है दैट इज 134 पिकोमीटर एंड दिस बॉन्ड लेंथ इज 109 पिकोमीटर. ये आपको लर्न करनी पड़ेगी. 108 पिकोमीटर ये आपको लर्न करनी. तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने क्या बताया बेटा, हाइब्रिडाइजेशन में आप पहले स्केलेटन, फिर फाइंड आउट करोगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, देन फाइंड दिस hybridization, then shape, name, and you will make such type of orbital picture. Then complete it with orbital diagram. एक बार इसको रिपीट आप लिसन करोगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर होगा. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टाइप, दैट इज C2H6. C2H6 भी सेम टाइप से है. C2H6 इज इथेन. इथेन है वो C2H6. और आपको पता है इथेन में कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन रहता है और हाइड्रोजन के साथ भी उसने सिंगल बॉन्ड ही फॉर्मेशन किया है. लेट्स सी हाउ. फर्स्टली फाइंड आउट हाइब्रिडाइजेशन फॉर ईच कार्बन. यू विल फाइंड आउट सेल्फ दैट कम्स आउट टू बी sp3 फॉर ईच कार्बन. एंड नाउ आई एम मेकिंग द डायग्राम जस्ट ऑर्बिटल पिक्चर. ऑर्बिटल पिक्चर आप कैसे बनाओगे? फॉर sp3 देयर इज द टेट्राहेड्रल शेप. ईच carbon undergo tetrahedral formation. Second carbon also undergo tetrahedral and each sp3 hybrid orbital get overlap with the one next carbon atom and makes the sigma bond formation. Sigma overlapping हो गई है. Rest of the sp3 hybrid orbital that overlap with the hydrogen atom and make sigma bond again. वहाँ भी sigma bond formation हुआ है with the overlapping. These overlapping are there that makes the sigma bond. Okay, means to say there are total 7 sigma bonds present in structure of ethane. You will find out spectroscopically that carbon-carbon bond length is 154 picometer and carbon-hydrogen bond length is 110 picometer. Okay, bond angle is according to tetrahedral, that is 109.5 degree. तो ये सब डिटेल्स आपको इसकी लर्न करनी है along with type of hybridization. Now you have another example, PCl5. That is another important example. PCl5. You will find out number of hybrid orbital.
दैट इज फॉस्फोरस के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 5, तो +5 कर दिया आपने 0 and 0, that is cationic charge and anionic charge comes out to be 5 hybrid orbitals, and you will find out कि फॉस्फोरस के पास जो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन है वो है 3s2 3p3, and it also has next orbital 3d which is empty. तो यहाँ से जो ऑर्बिटल है, if phosphorus has to make 5 bonds with chlorine, what happens actually, that is the excitation of this electron to the d subshell making 5 unpaired orbitals, तभी तो वो 5 क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. मीन्स दिस टाइम यू हैव 1s 3p and 1d as p3d, and the type of hybridization is sp3d. Okay, these 5 orbitals arrange themselves around the phosphorus in triangle and axial position. ठीक है, ये ट्रायंगल बनाएंगे और एक्सियल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. Where are the 5 chlorine atom arranged in this sense. ओके, आप इनकी ऑर्बिटल्स बना सकते हो. इन्हीं एक्सिस के अलोंग आपने ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर देने हैं लाइक दिस. ये ऑर्बिटल पिक्चर हो जाएगी. इसके साथ इसके स्मॉल एटम्स भी ड्रॉ कर दोगे तो आपके पास ये कंप्लीट पिक्चर बन गई है, ऑर्बिटल पिक्चर. यहाँ पर जो ये 3 बॉन्ड्स मैंने बनाए हैं, ये तीनों बॉन्ड्स हैं इक्विटोरियल. And these 2 bonds are the axial bonds. You see, these 2 bonds are the longest bond, then slightly longer than equatorial. That means these electron cloud of the atoms repel each other, that makes the bond length slightly longer. Okay, तो PCl5 में स्ट्रक्चर क्या बनेगी, that I have told you earlier, triangular बाइपिरामिडल. एक ट्रायंगल है और 2 क्या है उसके ऊपर, पिरामिड है. तो ये शेप है इसकी ट्राइएंगुलर पिरामिडल, बाइपिरामिडल एक्चुअली. Okay, now next one is the case for SF6. सेम टाइप से आप SF6 की भी हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करते हो. SF6 में क्या है बेटा, सल्फर के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और 6 एटम्स से अटैच है. तो आप फिर से काउंट कर लेते हो यहाँ पर, दैट कम्स आउट टू बी 6. दिस टाइम सेम वे में सल्फर D के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट करवाता है. ठीक है, सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 3s2 3p4 3d. When sulfur has to make 6 bonds, what happen actually, that is this one, 2 electrons were there in S and 1 P. So 1 electron is excited to release 4 unpaired electron, and next one that goes to form 6 hybrid orbitals, unpaired electron for the 6 fluorine atoms. All will make hybridization and undergo sigma bond formation for each p orbital of for फ्लोरीन एटम विद p ऑर्बिटल. क्योंकि फ्लोरीन में तो एक ही p ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, तो उस p ऑर्बिटल के साथ ये सारे सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे. ओके, तो ये किस तरह से शेप बनाते हैं, इनकी शेप है ऑक्टाहेड्रल. These 4 are in the square planar shape and these 2 are axial. That makes the shape octahedral. ठीक है, यहाँ पर सारी जगह आपके पास फ्लोरीन्स लगे हैं. इस शेप को क्या बोला है, ऑक्टाहेड्रल शेप.
ठीक है। अब इस टाइप से मैंने मैक्सिमम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करवा दी है। अब आप अपने मोर प्रैक्टिस करोगे बुक से और अपने डाउट्स लोगे। थैंक यू वेरी मच।